अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बस्ती दवाखानों के जरिए गरीबों को सरकार बेहतर तिब्बी खिदमात मुफ्त फराहम कर रही है। हैदराबाद में 3 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह करने के मौके पर वजीर तलसानी का बयान। केटीआर ने नीदरलैंड की मोबिलिटी टेक कंपनी स्टेलांटिस के डिजिटल हब का हैदराबाद में किया इफ्तिताह। कहा, पायदार नक्लो हरकत के लिए टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने की जरूरत। हैदराबाद में आईटी सेक्टर में जो तरक्की हुई है उसकी मिसाल हिंदुस्तान के किसी भी शहर में नहीं है। राइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह करने के मौके पर वजीर केटीआर का खिताब। सिद्दीपेट हेडक्वार्टर में माजूर अफराद में बस पासेस की तकसीम। मेहमान खुसूसी के तौर पर वजीर खजाना हरीश राव ने प्रोग्राम में की शिरकत। तेलंगाना रियासत में पोडू अराजियात के पट्टेजात की तकसीम का सिलसिला जारी। रियासती वुज़रा अरकान असेंबली कबाइलियों में कर रहे हैं पट्टेजात की तकसीम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अरकान असेंबली कालेरू वेंकटेश और एम गोपीनाथ के साथ मिलकर बल्दी डिवीजनों नल्लाकुंटा के रत्नानगर, अंबरपेट के प्रेमनगर और बोराबंडा के साइड 3 वीकर सेक्शन कॉलोनी में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर ने वजाहत की कि बस्ती दवाखानों के जरिए गरीबों को सरकार बेहतर तिब्बी खिदमात मुफ्त फराहम कर रही है। इस वक्त 160 से ज़ायद बस्ती दवाखाने लोगों को मुख्तलिफ किस्म की तिब्बी खिदमात फराहम कर रहे हैं। హైదరాబాద్ సిటీ, సికింద్రాబాదు, ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతంలో చాలా ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంటుంది. బస్తీ చాలా చిన్న చిన్న బస్తీలు ఉంటాయి. అయితే వీళ్ళకు వైద్యం అనేది ప్రధానమైనటువంటిది. హెల్త్ కాన్షియస్ పెరిగిపోయింది కరోనా వైరస్ మూలాన. అయితే మనకు బస్తీలలో ఏంటంటే పెద్ద మనుషులు కానివ్వండి, నార్మల్గా అందరికీ కూడా కీళ్ళ నొప్పులు, కాళ్ళ నొప్పులు, తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి ఇటువంటివి వస్తాయి. నీకు ఎక్కడికి పోయినా కానీ టెస్టులు చేస్తే ఇష్టం ఉన్నట్టు డబ్బులు దోచుకునేటువంటి వ్యవస్థ తయారైపోయింది. అవన్నీ దూరం కావాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, హెల్త్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారు మరి ప్రత్యేకించి బస్తీ దవాఖానా కాన్సెప్ట్ తీసుకురావడం మూలాన 157 టెస్టులు చేస్తారు ఇక్కడ. ఎవ్వరు బయటకు ఏ టెస్టుకు బయట పోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. రెండోది రిపోర్ట్స్ కూడా 24 గంటలలో రిపోర్ట్స్ ఇవ్వడం. ఆ తర్వాత ఎవరికన్నా మేజర్ డిసీజ్ ఉంటే కూడా మీకు గాంధీ, ఉస్మానియా, నిమ్స్ హాస్పిటల్ ఈ విధంగా ఇక్కడి నుంచే రెఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ప్రజల ఆరోగ్యమే ప్రధానమైనటువంటి ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రత్యేక లక్ష్యం కింద పనిచేస్తున్నటువంటి. ఒకప్పుడు నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకు అంటుండే, ఇప్పుడు నేను వస్తా బిడ్డ సర్కారు దవాఖానకు అనే వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి నేను బస్తీ వాస్తవులకు ఎక్కడెక్కడ బస్తీ దవాఖానాలు ఉన్నాయి అందరూ కూడా దయచేసి బస్తీ హాస్పిటల్కి రండి. దీనివల్ల మీ యొక్క మేలు కోసం, మీ ఆరోగ్యం కోసం పనిచేస్తుంది. तेलंगाना के वजीर आईटी और सनत केटी रामाराव ने पायदार नकलो हरकत के लिए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। चारशंबे के रोज़ वजीर केटीआर ने नीदरलैंड की मोबिलिटी टेक कंपनी स्टेलांटिस के डिजिटल हब ऑफिस का हैदराबाद में इफ्तिताह करने के बाद खिताब किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इस्तेकाम की ज़रूरत अहमियत में इजाफा करती है, मुख्तलिफ शोबों में मुस्बित असर डालने के लिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हैदराबाद में हुनर की दस्तयाबी पर रोशनी डालते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि हैदराबाद आने वाली नई टेक कंपनियों के ज़रिए भर्ती के तखमीने आम तौर पर बहुत कम वक्त में टूट जाते हैं। Ecosystem here, as Chris just called it, it's an automotive company and also with lots of technology inbuilt. What I would like to believe is, in fact, as we look around the world. Earlier, an automobile was completely different. But now if you look at an automobile, it's basically a computer on 4 wheels is what it is turning out to be rather. And I believe that sustainable mobility is the future. In fact, if you look around the world, anywhere in the first world, second world, or third world, irrespective of which part of the world you belong to or you come from,
I think every single citizen on the planet now realizes the importance of making it more and more sustainable and making sure that leveraging technology becomes that much more important. So we have launched what is called as Telangana Mobility Valley, and I'm delighted that Stellantis has already been a part of it, and I would look forward to a continuous association. I do believe, Chris, that this is just the beginning. I think Abhilasha hits the HR. So I'd say that I've seen this enough number of times already. Whenever we've had a new tech company come to Hyderabad, we've always been told that we'd be hiring so many people in so many months or years, and typically that prediction or projection is inevitably I wouldn't say it was proven incorrect, but I would say that it was always shattered in a much lesser time. So whatever conservative projections you've made, I can promise you that this is a city brimming with talent. This is a city that attracts talent. This is a city that can give you a lot more scope for expansion. So all the very best, and I look forward to being a part of your continuous journey. रियासती वज़ीर IT KTR ने हैदराबाद में राइट सॉफ्टवेयर के नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। बता दें कि राइट सॉफ्टवेयर एक आलमी IT सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है जिसका सदर दफ्तर ह्यूस्टन TX USA और हैदराबाद में है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर KTR ने कहा कि हैदराबाद में IT सेक्टर में जो तरक्की हुई है उसकी मिसाल आज हिंदुस्तान के किसी भी शहर में नहीं है। उन्होंने बताया कि राइट सॉफ्टवेयर तेलंगाना में 100 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा रखता है। अगले 3 सालों में IT पेशावर अफराद के लिए 1000 मुलाजमतें पैदा करेगा। Hyderabad really has become the resource capital of India. ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఈరోజు హైదరాబాద్కి టాలెంట్ ఇబ్బడి ముబ్బడిగా వస్తుంది. మరి ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఎక్స్ప్లోజివ్ గ్రోత్ ఏదైతే హైదరాబాద్లో మనం చూస్తున్నామో, ఎక్స్ప్లోజివ్ గ్రోత్ అని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే సరిగ్గా 2014లో 9 ఏళ్ల కిందట హైదరాబాద్లో ఉన్న మొత్తం టెక్నాలజీ జాబ్స్ ఆ రోజు పనిచేస్తున్న వాళ్ళు 3,23,000 మంది. కానీ ఈరోజు 9,05,000 మంది, అంటే 3 రెట్లు, దాదాపు 3 రెట్లు పెరిగింది. మన IT ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆనాడు IT ఎగుమతులు, IT సర్వీసెస్ ఆ రోజు 56,000 కోట్లు, ఈరోజు 2,41,000 కోట్లు, అంటే 4 రెట్లు, 400 రెట్లు, 400%, 4 రెట్లు పెరిగింది. హైదరాబాద్లో ఉన్న గ్రోత్ ఈరోజు భారతదేశంలోని ఏ నగరంలో కూడా లేదు, ఇంక్లూడింగ్ బెంగళూరు. ఇన్ఫాక్ట్ గత 2 సంవత్సరాలు మీరు చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తం భారతదేశంలో జనరేట్ అయిన, సృష్టించబడిన IT ఉద్యోగాల్లో పోయిన సంవత్సరం 33% హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాయి. అదే ఈ సంవత్సరం నంబర్స్ తీసుకుంటే 33% ఇంకా పెరిగి 44% అయింది. భారతదేశంలో ఈరోజు సృష్టించబడుతున్న ప్రతి 2 టెక్నాలజీ జాబ్స్లో ఒకటి హైదరాబాద్ నుంచి అని చెప్పడం మనందరికీ కూడా गर्वकारणों में रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने सिद्दीपेट ज़िला हेडक्वार्टर में माजूर अफराद में बस पासेस की तकसीमी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने पैसे से 450 माजूर अफराद को मुफ्त बस पासेस तकसीम किए। इस दौरान अपने खिताब में हरीश राव ने कहा कि बहुत से माजूर अफराद को बस पासेस के लिए दफातर के चक्कर लगाने में परेशानी का सामना है और इन सब को एक ही जगह पर बस पास फराहम करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। रियासती वज़ीर जंगलात इंदिराकरण रेड्डी ने कहा है कि CM KCR की अवामी हुक्मरानी की वजह से दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन कारकुनान BRS में शामिल हो रहे हैं। निर्मल ज़िले के मामड़ मंडल के परिमंडल गांव में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के 50 कायदीन कारकुनान ने आज चारशंबे के रोज़ वज़ीर इंदिराकरण रेड्डी की मौजूदगी में BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर इंदिराकरण रेड्डी ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर BRS पार्टी में शामिल कर लिया। నేను పాతవాన్నే మా విలేజ్ నుంచి మండల అధ్యక్షులు కానీ మా విలేజ్ మన లింగన్న గారు, మహేందర్ గారు, కిషన్ గారు వాళ్ళందరూ వచ్చి స్వార్థం లేకుండా పార్టీలో జాయిన్ కావడం జరిగింది. కిషన్ కూడా మంచి పనిమంతుడే, అతనికి కూడా మస్తు మందికి సేవ కలిగిస్తుండే ఊళ్ళే. ఆయన పార్టీలోకి రావడం మాకు చాలా గర్వకారణం. ఈరోజు ఏ విలేజ్లో చూసుకున్నా కానీ ఇంతకుముందు ఏ గుడికి పోదామన్నా కానీ ఇట్లా మనం పందిరి వేసుకొని ఉంటుంటిమి. మన మినిస్టర్ గారి దయ వలన ప్రతి విలేజ్లో, ప్రతి తోట్లల్లో భీమన గుడి కానీ, ఏ గుడి కాదు కానీ, శివాలయం కానీ అన్ని గుళ్ళు నిర్మించి ఈరోజు బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. మన మినిస్టర్ గారు నిస్వార్థం లేకుండా సేవ చేసి మన సారుని మళ్ళా 3వసారి గెలిపించుకుంటే మళ్ళీ మినిస్టర్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సీసీ రోడ్లు ఏది చూసుకున్నా కానీ ఇప్పుడు పింఛన్ కూడా పెరగడం జరిగింది. నిర్మల్ డిస్టిక్ కలెక్టరేట్ చూస్తే నాతే కళ్ళు తిరిగిపోతున్నాయి. ఎక్కడ లేని విధంగా
అంత మంచిగా నిర్మించడం జరిగింది కలెక్టరేట్. బ్రహ్మాండమైన లైటింగ్ తోని అన్ని సిస్టమ్, కనకాపూర్లో లైటింగ్ సిస్టమ్ అన్ని మంచి అభివృద్ధి జరిగింది కాబట్టి మనము ఖచ్చితంగా కారు గుర్తు ఓటేసి. वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने मुधोल रुकन असेंबली विट्ठल रेड्डी के हमरा आज चाशंबे को निर्मल जिले के कुबीर मंडल में 278 अफराद ने पोडू अराजियात के पट्टेजात तकसीम किए। इस मौके पर वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर के हुक्म के मुताबिक इस माह की 8 तारीख से कबल पोडू अराजी के पट्टेजात की तकसीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि पोडू अराजियात के पट्टेजात की तकसीम का काम सबसे पहले आसिफाबाद में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों से हुआ था। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज चाशंबे के रोज़ बालकुंदा हल्के के कमरपल्ली मंडल के डीसी तांडा में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत करते हुए पोडू अराजियात के पट्टेजात इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने अमीर नगर तांडा, सरपंच तांडा, डीसी तांडा, कोनापुर केसी तांडा, ओपला नायक तांडा, सोमीमेडी तांडा, बलैया नायक तांडा, गुड़ी मलकापुर तांडा के 190 मुस्तफिदीन में 590 एकड़ पोडू जमीन के लिए टाइटल डीड्स तकसीम किए। ఈరోజు చాలా సంతోషం, మనకు అందరికి కూడా సంతోషకరమైన రోజు. మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి వల్ల మన అడవి బిడ్డలందరికీ కూడా ఎవరైతే ఇప్పటికే అడవులలో వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారో ఆ చేసుకునే వ్యవసాయ భూమిని అంతటి కూడా వాళ్ళకే పట్టాలు చేసి ఇచ్చే కార్యక్రమం ఇవాళ జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ కార్యక్రమానికి అంటే మీ అందరికి కూడా తెలుసు, ఇంతకుముందు ఆర్టీఓ సార్ చెప్పిండు, ఈ పోడు భూములు ఇచ్చే చట్టం ఏంటంటే ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన చట్టం. పోడు భూములు ఎవరికి ఇవ్వాలా అన్న విషయంలో ఏమున్నదంటే 2005వ సంవత్సరం కంటే మొదలు నుంచి, అంటే ఇవాళ 2023వ సంవత్సరం, అంటే 18 సంవత్సరాల కింద నుంచి ఎవరైతే వ్యవసాయం చేస్తారో వాళ్లకు ఆ వ్యవసాయ భూమి వాళ్ళకే ఇచ్చేటట్టు చట్టం. కొందరి బాధ ఇబ్బంది ఏమున్నదంటే इनायत नगर विषय చెప్పిరు నాకు. आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना और जिला कलेक्टर राहुल राज ने आज चाशंबे के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तकर में मुनक्किदा अराजियात के पट्टेजात तकसीमी प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कबाइलियों में पोडू पट्टेजात की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में जैनात, बेला और आदिलाबाद देही मंडलों के कबाइलियों और आदिवासियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 12,222 మందికి 31,725 ఎకరాల భూమి ఆదిలాబాద్ మండలానికి 24 గ్రామ పంచాయతీ సభటువంటి గౌరవ సర్పంచులకు, గౌరవ ఎంపీటీ సభ్యులకు అందరూ ఆలోచించి మా జైనత్ మండలం సభటువంటి మరి గౌరవ సర్పంచులు, గౌరవ ఎంపీటీ సభ్యులు మరి జైనత్ కూడా ఈరోజు మనం 206 ఎకరాల భూమి 93 మందికి మరి 5 గ్రామ పంచాయతీ సభటువంటి 5 మేము కూడా పట్టాలు ఇస్తాం. కుమ్రం భీమ్ గారి పేరు మీద జిల్లాలు చేస్తాం. ఆదివాసులను వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతిని, ఆచారాలను కాపాడుతామని చెప్పింది. మీరు ఒకసారి గుండె మీద చేసేసుకొని చెప్పాలా, ఈరోజు కుమ్రం భీమ్ గారి పేరుతోటి జిల్లా చేసింది ఎవరన్నంటే మన కేసీఆర్ సార్.
మనం జోర్డన్ ఘాట్కు పోతుంటే కుమ్రం భీం గారి యొక్క వర్ధంతికి ఎప్పుడు కూడా అట్టిల్లే కిందనే పూజ చేసి तेलुगुदेशम पार्टी अखिलती क़याद सैयद मतीन अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुतालिक बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा एक कोरोना वायरस के जैसा हो जाए कि हर कोई इसमें परेशान नहीं हो रहा है, सिर्फ एक मुसलमान ही परेशान हो रहा है। क्यों भाई, क्यों मुसलमान इतना भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हें बुला रहा, ये कर रहा, उन्हें क्या करना है, क्या होने का है, ये परेशानी है, वो परेशानी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है भाई। पूरे हिंदुस्तान के मुल्क की आबादी करीब 130-140 करोड़ है, हम हैं 12 से 14%। तो मेरी सिर्फ आप लोग से मुस्लिम माइनॉरिटी से गुजारिश है कि प्लीज़ खुदा के वास्ते ये सब झमेले में मत पड़िए, ये सब झमेले में मत पड़िए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से आपका हमारा कोई नुकसान नहीं। हमारा 1-2 इशू में यूनिफॉर्मिटी आएगी, चेंजेस आएगी। हिंदू कम्युनिटी में 100 इश्यूज में चेंजेस आना है जो पॉसिबल नहीं है। और बिलखुसूस जो सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर्स है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन और उसके अगेंस्ट में जो भी है कि आवामुन्नास पब्लिक जो है ना, आप अगेंस्ट में है, मैं फेवर में हूँ। जो व्यू आपको देने का है, लॉ कमीशन ने वो व्यू मांगा है, ठीक है। तो मेरी गुजारिश है तमाम MPs, MLAs और कॉर्पोरेटर से कि आप जिस तरह से वोट मांगने के लिए घरे घर फिरते हो ना, ठीक उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो लॉ कमीशन ने जो अपना व्यू मांगा है, पब्लिक का जो व्यू मांगा है, उसके लिए आप डोर टू डोर जाइए, वहां पर उनका व्यू लीजिए, देन सबमिट दैट। दिस इज द एक्चुअल वे यू कैन डिफेंड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। बस मैं इसी बात पे ख़त्म करता हूँ कि मीडिया वालों से भी गुजारिश है, आप लोग भी अपने तरफ से एक ऐसी प्रेस मीट मीडिया वाले रखिए कि भाई आप लोग भी इसके समर्थन में हैं या अगेंस्ट में हैं। और मैं तेलुगु देशम पार्टी की हैसियत, तेलुगु देशम पार्टी के स्टेट माइनॉरिटी लीडर की हैसियत से मैं अपने तरफ से ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि तेलुगु देशम पार्टी भी अनकरीब यहाँ पर से बहुत अच्छे पैमाने पे इलेक्शन की तैयारी कर रही है। जो है ना पूरी डेवलपमेंट आया है तेलंगाना में, उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह एक प्रेस मीट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आरमूर में जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुतालिक तफसीलात बताई गई। इस मौके पर सदर ज़िला निज़ामाबाद हाफिज़ लईक खान, आरमूर सदर हाफिज़ शेख इब्राहिम ने खिताब करते हुए अवाम को बड़े पैमाने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपने एतराज़ात रवाना करने की अपील की। इंशाल्लाह तेलंगाना में सबसे ज्यादा काम आरमूर का रहेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि दूसरी जगह ऐसा हम 2 दिन पहले वर्नी और बांसवाड़ा भी जाना हुआ, वहां पर भी लोगों की काफी तादाद जुड़ी और वो लोग इस ताल्लुक से फिक्रमंद हैं, लेकिन एक तरीके से, एक सिस्टम से और एक पूरा मुनज़्ज़म अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम हो रहा है। ये तो जुमा तक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जुमा के दिन आप नमाज जो अइम्मा है, नमाज में हर एक के पास तकरीबन 80% लोगों के पास स्मार्टफोन है। एक स्कैनर का जो है जमीयत उलमा की तरफ से मैं बनाया, हाफिज साहब तक पहुंचाऊंगा। आप लोग मस्जिद के जिम्मेदार है तो इमाम साहब से कहिए कि सलाम फेरने के बाद पहले ये सवाल करे, भाई आप ये जो लॉ कमीशन ने राय तलब की है एक्शन सिविल कोड के खिलाफ, आप राय दिए नहीं दिए? नहीं दिए तो अभी दो। एक 10 मिनट लेट दुआ करे तो भी कुछ नुकसान होने का नहीं, लेकिन ये काम पहले है। 10 मिनट लेट हुआ तो भी चलता, बाहर जाके होटल पे चाय पी के पान खा के फिर कुछ खा के तो 1 घंटा हो जाता, उसमें बहुत मुश्किल होती। ये काम लोगों को जरा तरगीब दिलाए। और जो मार्केट की मस्जिद है वहां पर जरा दुकान खोलने के लिए ताजिरीन जरा ज्यादा बेचैन रहते, उनको भी समझा देना चाहिए कि 10 मिनट का काम है अगर हम करें। और जुमा के दिन हम ये जहन बनाए हैं कि अपने तौर पर जुमा का दिन हम ये आने वाली जुमा मुखालिफ यकसा सिविल कोड मनाएंगे। कैसा मनाएंगे? कोई एहतजाज नहीं, कोई बंद नहीं, कुछ नहीं। उसका आसान ये है कि हम हर एक से पूछेंगे अपने अफराद खानदान से, आप उसके खिलाफ राय दिए नहीं दी, खुद भी देंगे, अपनी बीवी को, बच्चों को, रिश्तेदार अहबाब को आप सबसे सवाल करिए जुमा के दिन आप उसमें कितनी थी तादाद ये सबको मालूम है। हम जाके असर में लाओ बोले तो मगरिब में तो दूर के बाद ये इश्यू गुरूब हो जाता, जब तक ये कार्ड नहीं आता मगरिब नहीं होती, इश्यू की उन्वानी गुरूब हो जाता। तो लिहाजा वो मस्जिद ही में उससे पहले इसको पूरा तहरीर कर लो। एक है पूरा व्हाट्सएप पे पूरा बना हुआ, कोई मुश्किल नहीं है। पीछे सिर्फ नाम और दस्तखत की जगह बाकी रखिए, बाकी पूरा फिलअप कर दीजिए। तो सब वहीं ठहर के दस्तखत कर देंगे और नाम नंबर लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे इंशाल्लाह।
वहीं कार्ड ले लेके वहीं से पूरे लोग हम उसको रवाना कर देते। शहर हैदराबाद में बढ़ती आबादी के तनाज़ुर में पुलिस स्टेशन की तादाद में इजाफा किया गया ताकि अवाम को सहूलत मिल सके। ताहम चंद्रागुट्टा पुलिस स्टेशन के करीब के इलाके को बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के तहत रखने से अवाम को परेशानी का सामना है। इसी के चलते मुकामी अवाम ने आज चंद्रागुट्टा पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज करते हुए मज़कूरा इलाके को चंद्रागुट्टा के तहत लाने का मुतालबा किया। अभी जो धरना चंद्रागुट्टा पीएस के सामने जो धरना करे चंद्रागुट्टे के आवाम पूरा हमारा चंद्रागुट्टा पीएस लिमिट्स पूरा चेंज करके चंद्रागुट्टा जो है टेम्पल वो टेम्पल चंद्रागुट्टे के पीएस के अंडर में आना है। तो 2 कदम आगे है पुलिस स्टेशन से, वो जाके बंडलागुड़ा में डाल दिए। उसके आसपास में पूरा जो भी इंदिरा नगर है केशवगिरी हिल्स है वो पूरा बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन में डाले। हमारा रिक्वेस्ट है पुलिस ऑफिसर से वो चंद्रागुट्टा हिल्स और इंदिरा नगर को हमारे चंद्रागुट्टा पीएस में इंक्लूड करना बोल के रिक्वेस्ट है। दूसरी बात है जो चंद्रागुट्टे के ऊपर और टेम्पल में जो पूजा होता है साल को एक बार ब्रह्मोत्सव बोलकर, उसमें चंद्रागुट्टा का पीएस की तरफ से कपड़े और फूल वो सब निज़ाम सरकार के गवर्नमेंट से अब देते आ रहे, लास्ट ईयर तक देते आए। इस बार जो है सो इसको चेंज करने से बंडलागुड़ा पीएस से आना पड़ता है। इसलिए हमारे ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है कि कंपलसरी चंद्रागुट्टा का पीएस में चंद्रागुट्टा टेम्पल को इंक्लूड करना बोलकर रिक्वेस्ट है। ऑफिशियल को आप लोग हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर को दिए, अभी एसीपी साहब को दिए, पूरे ऑफिसर्स को दे रहे। परसों हमारे चंद्रागुट्टे के आवाम जाकर होम मिनिस्टर को भी दिए। हमारा रिक्वेस्ट है। ज़हीराबाद के मुमताज़ समाजी कारकुन डी वसंत ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का खुलासा किया कि वो असेंबली इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे बल्कि बीआरएस के एक सिपाही के तौर पर काम करेंगे। डी वसंत ने बताया कि वो 10 जुलाई को वज़ीर ख़जाना हरीश राव के ज़हीराबाद दौरे के मौके पर अपने हामियों के हमरा बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాము కాబట్టి మీకు ఈ కార్యక్రమానికి సపరేట్గా పిలవడం జరిగింది। అయితే ముఖ్యంగా మొట్టమొదటి మీకు అంశంగా చెప్పాల్సుకున్న విషయం ఏంటంటే ఇంతకుముందే నేను చెప్పినట్టు రాజకీయ పరమైన నిర్ణయం ఏదో ఒక పార్టీ తీసుకుంటామన్నాం కాబట్టి ఈరోజు మా కుటుంబ సభ్యులందమా, జైరాబాద్ యొక్క ఆత్మీయులందమా, లేకపోతే పార్టీ పరంగా ఉన్నటువంటి అనుబంధమా, సాహిత్యమా, ఒక ఎలాంటి బేసిజాలం లేకుండా, మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఎలాంటి బేసిజాలం లేకుండా, ఎలాంటి కండిషన్స్ లేకుండా మేమందరం కూడా ఈరోజు నాతో పాటు ఇక్కడ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడారు ఇప్పటికి కూడా నా మీద గౌరవంతో, ముఖ్యంగా జైరాబాద్ మీద ఇప్పుడే అన్న మాట్లాడారు। జైరాబాద్ను ఒక ఇంటర్నేషనల్ మ్యాపింగ్ చరిత్రలో ఈరోజు ఎందుకంటే న్యూస్ వచ్చింది కాబట్టి అభివృద్ధి పరంగా ఉన్న అవకాశాలను స్థానికంగా విద్య, వైద్యము, ఉపాధి ఎన్నో రంగాలుగా ఎందుకంటే అన్నగారు కూడా డిక్కీకి కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నారు, చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఒక అభివృద్ధి పథంలో తీసుకువెళ్ళే ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది కాబట్టి మేము మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా ఆయనకు మనం ఈరోజు మెన్షన్ చేయాలి। తెలంగాణ ఉద్యమంలో మొదటి నుంచి కూడా ఆయన వెనకాల ఉన్నాం కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గత 8-9 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో విధి విధానమైనటువంటి విషయాలు తీసుకున్నాడు। మేము తెలుసు ఒక రైతు నాయకుడిగా ఇప్పటికే మా మాధవరెడ్డి అని చెప్పాడు, రైతు నాయకుడిగా చెరుకు రైతుల్లో ఒక తీపి బతుకుంది, మన చేదు బతుకుంది కాబట్టి ఒక తీపిని నింపే ప్రయత్నంలో బాగా అన్నాడు కాబట్టి ఈ విధి విధానాలను చూసి ముఖ్యంగా అంటే ఈరోజు రైతు బంధు అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఒక విధానపరమైన నిర్ణయము। ఆ తర్వాత నేను ఒక దళిత బిడ్డనే కాబట్టి ఒక మాలమాదిగ కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తినే కాబట్టి దళిత బంధు అనేది ఇంకొక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయమే। అట్లా చూసుకుంటూ పోతే ప్రతి రంగంలో ఆయన कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बीदर यूनिट ब्रह्मकुमारी ईश्वरैया विश्वविद्यालय और डॉक्टर SS सिद्धि फाउंडेशन के इश्तराक से ब्रह्मकुमारी ईश्वरैया विश्वविद्यालय जनवाड़ा रोड बीदर के अहाते में यौम सहाफ़त प्रेस डे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों के 5 बच्चों को टैलेंट अवार्ड से नवाजा गया और सहाफ़ियों की भी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई, जिसमें बीदर से BBN के नुमाइंदे सैयद यादुल्ला हुसैनी को भी तहनीत पेश की गई। इस मौके पर ब्रह्मकुमारी ईश्वरैया विश्वविद्यालय की प्रतिभा बहन जी ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़त एक नेक काम है, इंसान की सुबह अखबार देखने के बाद ही शुरू होती है, इसलिए सहाफ़ियों को चाहिए कि वो अपने अखबार या TV चैनल्स में अच्छे ख़बरों को शाया करें ताकि अखबार पढ़ने और TV देखने के बाद उसका दिन अच्छा जाए। इस मौके पर एसोसिएशन के रियासती नायब सदर
पृथ्वीराज, इंफॉर्मेशन ऑफिसर जी सुरेश, डॉक्टर गोरमा, एसोसिएशन के जिला सदर डी के गणपति और दीगर मौजूद थे। के साथ 10 मिनट मिलते हैं, संपर्क में आते हैं, तो ना वो हमसे संतुष्ट होता, सेटिस्फाई होता, और ना हम उनसे सेटिस्फाई होते। केवल भागा दौड़ी तनाव के कारण आज हम सभी भाग रहे हैं। तो मैं आप सभी को परमात्मा के ये दिव्य संदेश देते हुए ये खुशी की बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि सवेरे का समय एक ऐसा होता है जब व्यक्ति सुबह कोई अच्छी बात पढ़ लेता है, कोई अच्छी बात। फलाही इदारा सफ़ा बैतुल माल शाखा आदिलाबाद के तहत गुज़िश्ता 2 सालों से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मुस्तहिक़ीन में माहाना वज़ाइफ तक़सीम करने का सिलसिला जारी है। सदर सफ़ा मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशीदी ने दफ्तर सफ़ा पर ज़िम्मेदारान सफ़ा के हमरा माहाना वज़ाइफ तक़सीम करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि 20 से ज़ायद मुस्तहिक़ीन में फ़ीकस 500 रुपये के हिसाब से वज़ाइफ की तक़सीम अमल में लाई गई। मौलाना ने अहल खैर हज़रात से मुखलिसाना अपील की कि वो सफ़ा की मुख्तलिफ़ खिदमात में ताउन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा बैतुल माल शाखा आदिलाबाद शहर आदिलाबाद का आपका फलाही इदारा है, जो गुज़िश्ता 14 साल से शहर आदिलाबाद में खिदमत अंजाम दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 साल से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत सफ़ा बैतुल माल शाखा आदिलाबाद की जानिब से हर माह की 5 तारीख को माहाना वज़ाइफ तक़सीम किए जाते हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 जुलाई बरोज़ 4 जुम्ला 2023 को भी हस्बे मामूल जुमला 12,500 रुपये के माहाना वज़ाइफ तक़सीम किए गए और सफ़ा बैतुल माल शाखा आदिलाबाद के ये तमाम काम आप अल्लाह के फज़ल व करम और आप अहबाब के मज़ीद ताउन से जुड़े होते हैं। हम तमाम से अपील करते हैं कि सफ़ा बैतुल माल शाखा आदिलाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएँ ताकि ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत बर वक्त पूरी हो सके। जज़ाकल्लाहु खैर। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। बस्ती दवाखानों के जरिए गरीबों को सरकार बेहतर तिब्बी खिदमात मुफ्त फराहम कर रही है। हैदराबाद में 3 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह करने के मौके पर वजीर तलसानी का बयान। केटीआर ने नीदरलैंड की मोबिलिटी टेक कंपनी स्टेलांटिस के डिजिटल हब का हैदराबाद में किया इफ्तिताह। कहा पायदार नक्लो हरकत के लिए टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने की जरूरत। हैदराबाद में आईटी सेक्टर में जो तरक्की हुई है उसकी मिसाल हिंदुस्तान के किसी भी शहर में नहीं है। राइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह करने के मौके पर वजीर केटीआर का खिताब। सिद्दीपेट हेडक्वार्टर में माजूर अफराद में बस पासेस की तकसीम। मेहमान खुसूसी के तौर पर वजीर खजाना हरीश राव ने प्रोग्राम में की शिरकत। तेलंगाना रियासत में पोडू अराजियात के पट्टेजात की तकसीम का सिलसिला जारी। रियासती वुज़रा अरकान असेंबली कबाइलियों में कर रहे हैं पट्टेजात की तकसीम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।